We'll start. Take down the details. Okay, 7th April 1992. 1992. It's a chart of a male. पुरुष का जातक है. Okay, 7:25 AM. Birthplace is Mumbai. Always when you get a chart, you have to first find out whether it is a male or a female, and you should also know what is the age going on. Okay, that is important. Why? Because our event prediction will be based on these two, male and the age. Okay, this native is going through the 34th year. 34th year. Okay, now today we will go through how to see the static chart. Same chart. Okay, birth chart को कैसा देगा, transit अभी नहीं लगाएंगे. We will just go through the natal chart. Okay, on the just looking at the chart, how do we know whether a person's childhood will be better or his youth will be good? बचपन अच्छा जाएगा, बचपन अच्छा जाएगा या यूथ एज या ओल्ड एज अच्छा जाएगा, ये देखने के लिए दो तीन मेथड है. अष्टक वर्ग में ये जो पाइसस से जेमिनी जो आपको सर्वाष्टक वर्ग जो है ना, फ्रॉम पाइसस टू जेमिनी, सर्वाष्टक वर्ग का स्कोर वो टोटल करने का, टोटल सर्वाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग का टोटल करने का फ्रॉम पाइसस टू जेमिनी. Pisces to Gemini will signify the childhood. Okay, so in this case the Sarvashtak Varg has 29 points of in Pisces, 22 points in Aries, then 28 points in Taurus and 29 points in Gemini. Can you all total this? How much it comes to? 110? 108. Okay, just keep this in mind. Then the youth, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यूथ को युवा अवस्था, युवा पीरियड. ओके, कैंसर से लिब्रा, कैंसर में यू विल सी देयर इज 32 पॉइंट्स है. लियो में 27 है, वर्गो में 24 है और लिब्रा में 25 है. कितना हुआ? सेम अल्टरनेट. ओके, देन ओल्ड एज विल बी फ्रॉम स्कॉर्पियो टू एक्वेरियस. स्कॉर्पियो में 30 है, 30. सैजिटेरियस में 28 है, कैप्रिकॉन में 37 है और एक्वेरियस में 26 है. तो टोटल कितना हुआ? 121. तो इनका ए नेटिव का ओल्ड एज विल बी very good as compared to the childhood and youth. Okay, yeah. The rule which you told right now, is it same applicable for the author of the or it is basically the opposite?
I will come to the other variation also. I will come to that. This is the standard. Basically for any Any Kundali, Kundali. Gemini Kundali, Yes, any Kundali. But to be more specific, for an individual, for a natal chart, according to me, you have to take 4 houses from the ascendant. You are getting me what I'm saying? यही जो है ascendant से लेने का, ascendant से 4 houses, 1 that is इसमें ascendant Aries है, Aries ये टोटल करो, Aries में 22 है, Taurus में 28 है, Gemini में 29 है और कैंसर में 32 है. ये कितना टोटल कितना हुआ? 111. Okay. Now similarly this will represent the childhood for the person. Okay. Now you will ask me what is childhood? How do you bifurcate? Okay. You cannot obviously take 120 years of Vimshotri Dasha, nor you can take Ashtotri Dasha of 108. Okay. So you have to assume based on normal lifespan of a person, like 80 years, 75, 80 or 80 if you take, divide by 3. Okay. So if you take divide by 3, then safely 27, 30 you can take 90 years ले सकता है. Okay, or 25 ले लो. So first 25 years will represent the childhood. The second 25 years will represent the youth. And the third 25 years will represent the old age. Okay. Aries से अभी यहाँ से Aries से लेके कैंसर तक for this person, for different charts this will vary because आपका ascendant दूसरा होगा ना. Okay. तो वो हिसाब से आपको 4 हाउसेस आपको टोटल करना. तो यहां पर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर का you got 111. Correct? Now you total for youth, that is Leo to Scorpio. Leo, Virgo, Libra, Scorpio. कितना आया? 27 in Leo, 24 in Virgo, 25 in Libra and 30 in Scorpio. 106. Okay. So far the first 4 houses is 111. Second 4 houses representing youth is 106. And the rest from Sagittarius to Pisces is old age. Sagittarius is 28. Capricorn is 37. Aquarius is 26 and Pisces is 29. So how much is that? 120. So here again the same. So old age seems to be better. That's correct. I am not disputing that. I am just saying to safely generalize. I am saying generalize. Andaz. Okay. So he is going through the 34th year. Barabar na? 34th year. So 34th year comes under 106 range. Okay. So this will not be a good period for him. This will not be a good period for him as far as his life is concerned. Now we will see which part of that. Okay. Now when you do this, you will have to first, since he is going through the second portion of his life, that is from Leo to Scorpio. Okay. Now you can, this is not given in any book. What you can do is, these 4 signs, that is from Leo,
Virgo, Libra, Scorpio, we said 25 years we should take. Correct? Andaj se, approximate. If you divide 25 by 4, okay, तो कितना आएगा? 6 साल, approximate 6 साल. Okay, so he is going through 25 plus 6 is how much? 31. So he is in this Virgo region. Virgo में है वो, करेक्ट ना? वर्गो में है. तो वहां पर what you have to do is you have to check the Sarvashtak Varga score which was there in the previous 6 years of the second part of his life, which is 25 years. Second part is 25 years. This person is going through the 34th year, which comes if we take 25, 25, 25. The second part of the youth is going on for him. Out of the 4 Rashi, we are talking about the Virgo. No, from Leo to Scorpio. Leo to Scorpio. So Leo, so 4 signs if we take, 25 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 6 साल अप्रोक्सीमेट. तो ही इज गोइंग टू 34th ईयर. सो 25 प्लस 6, 31. सो लियो इज ओवर नाउ फॉर हिम. ही इज इन द ब्रैकेट ऑफ वर्गो. ओके, क्लियर? Virgo also here covered some part. Yes, covered. I am not disputing that. But mota mota for 6 years, how will it be? Okay. That there in Leo he had 27 points. If you see in the Sarvashtakra, correct. In the previous to that he had 32 points. हाँ, समझ गया? तो 32 से जो पहला 25 years जो था 22, 28, 29, 32, इसका जो 18 to 25 was a good period for him. कंफर्म करना अरविंद. 18 to 25 was a good period for him. Then उसके बाद थोड़ा उनका कम हो गया क्योंकि 32 से 27 हुआ. So his period of 26 to 31 was not at all good for him. बराबर है? बराबर है? Now what is there in that? This one, Jupiter is there. वर्गो में, लियो में जुपिटर है ना? जुपिटर है ना? करेक्ट. वो लॉर्ड ऑफ द 9th और 12th है. करेक्ट. तो इट इज 5, 9 और 12 और 11 और 1 बराबर. एस्पेक्ट जहां बेटा है, गुरु बैठा है 5 में. गुरु का लॉर्डशिप 9th हाउस है, गुरु का लॉर्डशिप 12th हाउस है, और ये देखता है 11th हाउस को, 1st हाउस को देखता है. तो यहां पर ये अगर स्पेकुलेशन में गया रहेगा तो ये बहुत पैसा लूज किया था. स्पेकुलेशन में कुछ गया था. इस समय पर वो अगर किसी लड़के के साथ चक्कर में हुआ तो टूटा होगा. एक मिनट बिकॉज 5 मैं कनेक्ट कर रहा हाउसेस. 1, 5, 9, 11, 12, 1 हो गया. ठीक है. हाँ, 25 to 31. हाँ, बाहर जाता था. देखो हाउस कनेक्ट हुआ ना, पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है.
पायलट कैबिन क्रू में था। देखो देखो 1 9 12 इफेक्ट हुआ ना, तो वहां पर 5th हाउस भी है, तो कोई लड़की के साथ संबंध तो आया रहेगा। जो भी हो आया रहेगा, कुछ ना कुछ टूटा रहेगा, क्योंकि 5 12 भी है। ओके 1 5 11 9 12। ओके और ये जुपिटर यहां पर रेट्रोग्रेड है। ओके जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो यहां पर उसको बाहर जाने का मौका बहुत मिला रहेगा, बहुत मिला रहेगा। ओके करेक्ट। 1 9 12 9 12 नो 9 12 9 12 आई एम कमिंग टू रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का इफेक्ट मैं बता रहा हूं। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट रेट्रोग्रेड के वजह से ऐसा है कि गैप भी आ सकता है, उसमें छोड़ भी सकता है, एक एयरलाइन से दूसरा एयरलाइन जाने का भी संभावना है वहां पर। देख बराबर, क्योंकि रेट्रो है, वो रेट्रो है तो सी एनी कोई भी क्लासिक में, इन एनी क्लासिक नोवेयर इन एनी सूत्र ऑफ any classic it doesn't give you the reference of retrograde planet. It only says that this planet will be in this house, this will be the result. Okay, so when it is retrograde it will certainly give you the opposite result. Yes, that's what I say, change, setbacks. हाँ अच्छा होएगा कौन? Yes, retrograde will give you negative result. Negative. If I'm coming to your point. If a planet is benefic, if it is retrograde, then what will happen is it will give you some power to withstand the shock. अगर एक planet बेनिफिक है और वो रेट्रोग्रेड है, तो तुम्हारा लाइफ में जो भी इवेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका लाइफ में उसका स्पाइस जेट बंद हो गया, तो दूसरा इसमें तो जल्दी दूसरा नौकरी मिलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसको बेनिफिक जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है और नेचुरल बेनिफिक है। अगर यही प्लैनेट मैलेफिक होगा, नेचुरल मैलेफिक होगा और फंक्शनल मैलेफिक भी होगा, समझो फंक्शनल मैलेफिक होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको। यू आर गेटिंग मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक तो फंक्शनल मैलेफिक हुआ, फंक्शनल मैलेफिक हुआ, ओके और नहीं, लॉर्ड ऑफ 9th and the 12th. Okay. You people know Brihat Parashara rules का? But when you are considering 6th house, Virgo you are considering. I have not come to 6th house yet. Virgo I have not come. I am still in Leo. Okay. Now we have gone through the period of 26th year to 31st year. Correct? हाँ. Yes, good result will be. Okay, because Sarvashtra Varman, the point is going up. Okay, certain setbacks देगा. Okay, now come to the next particular. Now in this case, Virgo में, Leo में, it is aspected by Mars. Yes. It is aspected by Mars, which is 1st lord and the 8th lord. अभी यहां पर ये जो मार्स है, एज पर बृहद पराशर हो रहा और एनी क्लासिक, लग्ना लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट, शुड गिव यू बेनिफिट,
but here it is first lord and the eighth lord both, and that is sitting in the Badaka Sthan because the Charalagna. एरीज इज चर लगन, चर लगन के लिए बाधक स्थान क्या है? 11th हाउस है, बराबर है। तो लगन का अधिपति बाधक स्थान में जाकर बैठा है, तो बाधक कैन क्रिएट प्रॉब्लम ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दी लिविंग थिंग्स। बाधक विल नॉट गिव यू प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल बाधक में है तो उसको पैसा तो देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इफेक्ट होगा, ओके। और ये 5th हाउस का है तो 5th हाउस को बाधक स्थान देता है और 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है और वो बाधक स्थान में बैठ के 5th हाउस को देखता है ना। हाँ लगेगा ना, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अष्टम स्थान का मालिक होते हुए बाधक स्थान में रहकर 5वें स्थान के देखने से इसको पेट का संबंधी होगा, पेट, पेट का रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड बैक प्रॉब्लम। मार्स बैक प्रॉब्लम था, तो मार्स व्हेन इट इज एस्पेक्टिंग द लियो इट इनवेरिएबली गिव्स यू एसिडिटी इन द स्टमक, it gives you problem with respect to the bones, okay, got it? होएगा। मार्स क्या है? नीचे गिरने का, मार्स नीचे गिरने का, ओके। लियो ना, लियो साइन नहीं, वो हार्ट का अपर डायफ्राम है एंड बिलो दी हार्ट। लियो इज बिलो दी, दो पोर्शन ऑफ द हार्ट है, एक अपर एंड लोअर, तो लोअर पोर्शन, एंड इट विल ऑल्सो सिग्निफाई द स्पाइन, पीछे का, बैक। L4 L5 तो नीचे जाएगा, वर्गों में जाएगा। L4 L5 विल बी द 9th हाउस, 8th एंड द 9th हाउस, ओके। हिप पोर्शन किसको? हीलिंग, सी हीलिंग तो होगा क्योंकि गुरु वहां पर बैठा है, गुरु वहां पर बैठा है। रेट्रो 80 के बट होएगा वापस आएगा, होएगा वापस आएगा, रेट्रो है। नाउ ये जो मार्स है वहां पर जो लियो को एस्पेक्ट करता है, जहां 27 पॉइंट्स है, मार्स कहां से एस्पेक्ट करता है? 11th हाउस से, बराबर है। वहां पर कितना पॉइंट है? 26 है। अभी आपको तो पता है ना, इसमें कक्षा अप्लाई करने का, मार्स कौन सा डिग्री में है? 13.59, तो कौन सा कक्षा में आएगा? करेक्ट, बराबर ना। तो मार्स का कक्षा में जाके देखो, वहां पर सन ने 0 पॉइंट दिया है। यू विल सी सन हैज गिवन 0 पॉइंट्स, करेक्ट। 345, फर्स्ट कक्षा इज 345, 0 to 345, सेकेंड कक्षा इज 345 to 730, 730 to 1115 is the third कक्षा, 1115 to 15 is the fourth कक्षा, which is sun's कक्षा, बराबर। तो सन जो है वहां पर पॉइंट दिया नहीं है। सर वो कौन सा देखना है? 11th में ही देखना है ना, जहां मार्स बैठा है। तो वहां पर मार्स का जो एस्पेक्ट है ऑन द साइन लियो इज अ मैलेफिक एस्पेक्ट। मार्स है ना, एस्पेक्ट करता है। मार्स 26 पॉइंट से सर्वाष्टक वर्ग में, ओके। वहां पर वो 13.59 डिग्रीज में है, तो 13.59 बोले तो 4th कक्षा हुआ, विच इज 11.1115 to 15, करेक्ट, विच इज सन्स कक्षा। सन ने वहां पर पॉइंट दिया है क्या? 0 दिया है। एक्वेरियस में ही देखने का, क्योंकि सन, मार्स एक्वेरियस में है ना। Absolutely यार, विनाष्टक only we are talking of. Yes, well Mars is, we are looking at Mars.
तो मार्स को सन हैज नॉट गिवन एनी पॉइंट्स, 0 पॉइंट दिया है. सो एस्पेक्ट ऑफ मार्स ऑन द लियो इज नॉट एट ऑल गुड. In fact, wherever Mars is aspecting, his aspect is not good. Mars is aspecting his second house. Mars is aspecting his fifth house. Mars is aspecting his sixth house. Okay. So Mars is property. It is aspecting sixth house. So we will certainly face some point or the other प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल इश्यूज. आएगा वो मार्स का दशा अंतर्दशा में आएगा कभी. हाँ, अभी हम लोग जाएंगे. अभी जुपिटर में मार्स चल रहा है. और वो मार्स देख रहा है. अभी उसको मंगल का सेकेंड हाउस को देखने से उसको दांत या आंख का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वहां पर चंद्र बैठा हुआ, तो आंख का भी प्रॉब्लम आ सकता है. और वो चंद्र जो है चौथे हाउस का मालिक है, मदर का हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकता है. मदर का हेल्थ खराब है. अभी मंगल भी गोचर का मंगल भी वो मंगल के ऊपर से जा रहा है. देखो कहा सेकेंड हाउस में सन का संबंध ही नहीं है. मैं मार्स का बात कर रहा हूं एक्वेरियस में. वो नहीं देखना. क्यों देखने का है? मार्स जहां से एस्पेक्ट करता है, एब्सोल्युटली ना, करेक्ट. तो मार्स इज एस्पेक्टिंग हिज सेकेंड हाउस वेयर मून इज प्लेस विच इज लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस. ओके. वो अगर घर बेचने को निकाला रहेगा, घर बेच के कुछ करने को किया रहेगा, तो वहां पर उसको कुछ ऑब्स्टेकल्स आएगा. चेंज किया 4 महीने भी, देखो है ना. तो वहां पर कुछ ना कुछ अड़चन आया रहेगा उनको, क्योंकि मार्स एस्पेक्ट करता है वहां पर. ओके. और अभी आएगा, क्योंकि वो मंगल जो है नेटल मंगल के ऊपर ट्रांसिट मंगल जा रहा है. अभी 4-5 दिन हो गया. ओके, क्लियर. हाँ, house will happen, mother's health will impact, he will become more aggressive because moon is mind. Okay, he will be more aggressive. Okay, disturbed. He will have problem with respect to eyes because moon is eyes, it is in the second house. Okay, he will have irritation in the eyes. Okay, throat में irritation होगा. हाँ, सेकेंड हाउस को रिलेट करना है तो मून है, तो इट कैन बी ओनली आइस. ओके. सो एंड द मार्स इज एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस ऑल्सो, सो ही विल हैव बाउट्स ऑफ एसिडिटी. ओके, डाइजेस्टिव इश्यूज, वो सब रहेगा. क्लियर. तो ऐसा एस्पेक्ट भी देखने का जब व्हेन यू आर डूइंग दिस. हाँ, वही तो किया. ओके. Abhi now we will come to the second part, that is 6 years of the second 25 years. I am coming to that. No, वर्गों को अभी आ रहा हूं ना मैं. वर्गों में he is going to 34th year. 34th year will come in Virgo. Correct. वर्गों में अभी if you see previous house had 27 points. Now this house is having 24 points. और भी कम हो गया. तो further there is a problem for him, and that happens with 6th house. So job में तो प्रॉब्लम है. जॉब में प्रॉब्लम है कि नहीं? जॉब लॉस हो गया. देखो, जॉब लॉस हो गया. See, you can get the band. You can even go month by month in Ashtak Varga. Month by month I am telling you. ओके. ऐसे बुक में दिया नहीं है किधर भी. आई एम जस्ट गिविंग यू माई रिसर्च. ओके,
Now in Virgo there is no planet. Obviously 27 से 24 हो रहा है, there has to be some downfall. But downfall in respect to what? 6th house. Health, service, everything, loan, everything. To specifically go which aspect, now you have to see where is the 6th lord posited and who is aspecting the 6th house, and 6th lord is along with which planet. पहले 6th हाउस में क्या प्लैनेट है देखने का, करेक्ट. 6th हाउस का लॉर्ड किधर है देखने का, उसके साथ कौन सा प्लैनेट है, फिर 6th हाउस को कौन एस्पेक्ट करता है देखने का. three things are there. What I told you, one is the 6th house. There is no planet in the 6th house. You have to see. Then second, where is the lord of the 6th house situated? These things will happen during the 32 years to 38 years. Correct? Now, Mercury is sitting in the 12th house and it is debilitated. And retro भी है. देखो कैंसलेशन में कभी भी सीधा ऊपर लेके नहीं जाता. नीच भंग राजयोग में ऊपर लेके जाके नीचे लेके आता है, नीचे लेके जाके ऊपर लेके आता है, दोनों भी करता है. मगर कभी क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नीच भंग राजयोग में जो प्लैनेट, अ प्लैनेट विच क्रिएट्स अ भंग इन दैट पर्टिकुलर दशा और अंतरदशा विच कम्स, वो अंतरदशा में उसको ऊपर लेके आएगा. अभी वीनस भंग करता है ना, मेरकुरी का दशा में अंतरदशा में उसको नीचे लेके आएगा ही लेके आएगा. मगर भंग कौन करता है, वीनस. तो वीनस का अंतरदशा आएगा तो ऊपर लेके जाएगा. नीच भंग का कंसेप्ट ये है, समझ लो. ठीक है. अभी मेरकुरी का अंतरदशा was 2016 to 2019. ओके. मेरकुरी का अंतरदशा, राहु में मेरकुरी था, तभी उसको सर्टनली सेटबैक आया रहेगा. किधर? मैकडोनल्ड्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तभी जॉब छोड़ना पड़ा. कोई परिस्थिति ऐसा आया रहेगा, छोड़ना ही पड़ा, ऐसा हो गया रहेगा. ओके. मगर जब 2020 टू 23 आया, वीनस भंग करता है ना वीनस, तो वीनस का अंतरदशा में उसको किधर ना किधर कुछ मिला. उसको देखो केबिन क्रू में हेड ऑफ हेड मिला उसको. सी यू हैव टू, there are a lot of rules given in the astrological classics, but how to apply that logically is most important. नहीं, वो सब बाद में. अभी हम लोग पहला we will go into which are the where these that Virgo का lord is sitting. It is sitting in the 6th house. So between the 32 years to 38 years, he has to face setback in the job. Stargazing. So on 14th of March. So point what I'm making is, first when we go through the Virgo as a band for 32 years to 38 years, first you see the where is the lord situated. That lord is situated in the 12th house, retrograde. Okay. Now that has to give a problem for him during that period. Okay. Now what other problems he can get? Now Mercury is aspecting the 6th house. Okay. Mercury is aspecting its own house. Always remember, a planet here it is niche. Mercury is niche. Even then, a planet which is aspecting its own house will not spoil that house. Spoil that house, its own house. वो कितना भी नीच होने दो, अपने खुद के घर को देख रहा है तो वो खराब नहीं करेगा अपना घर को.
समझ गया ना? खाली क्या वो रेट्रोग्रेड होने से उसको बार बार एफर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, इतना ही है, क्योंकि रेट्रो है। ओके, एक बार मेहनत करने से नहीं होगा, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, समझ गया? क्योंकि रेट्रो है। मैं आ रहा हूं वहां पर। कितना पॉइंट है अभी? अभी मेरकुरी जो है 29 पॉइंट्स है वहां पर, विच इज मोर देन 24 ऑफ वर्गो। सी हाउ आई एम गोइंग वन बाय वन। वर्गो में 24 है, जहां मेरकुरी, वीनस और सन जो बेटा है, जो 6th हाउस को देखता है, वहां पर मेरकुरी को 29 पॉइंट्स मिला है सर्वाष्टक वर्ग में। बट मेरकुरी जो है वो क्या डिग्री में है? 5.11, विच इज इन द सेकंड कक्षा। सो इन द सेकंड कक्षा ऑफ मेरकुरी का विनाष्टक वर्ग में जाएगा, तो वहां पर जुपिटर का कक्षा में आया वो। हाँ? नहीं बा कैसा? व्हाट आर यू सेइंग यार? 1 पॉइंट इट इज गिवन, जुपिटर का सेकंड कक्षा में आया है। तुम ध्यान दो, मेरकुरी का देख रहे हो तो मेरकुरी का विनाष्टक वर्ग देखो ना, वर्गो नहीं देखने का, बराबर? तो जुपिटर का, तो मेरकुरी का इसमें उसका जॉब गया, तो भी उसको, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ द 9th एंड द 12th हाउस, ही गॉट अ चांस टू फ्लाई, बराबर? बराबर ना? उसको बाहर जाने का मौका मिला। क्यों? जुपिटर का कक्षा में बेटा है, जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। क्लियर? क्लियर? So Jupiter's Mercury's aspect on Virgo is positive, not negative. हाँ, तो वहां पर मेरकुरी कौन से कक्षा में बेटा देखना पड़ेगा। देखो, सर्वाष्टक वर्ग में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक सर्वाष्टक वर्ग का पॉइंट है, भिन्नाष्टक वर्ग का पॉइंट। अगर सर्वाष्टक वर्ग में थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या बोला था? मिनिमम 25 to 28 एवरेज। ओके, अगर 25 का अंदर रहेगा तो भी, नीचे रहेगा तो भी, अगर खुद को अगर पॉइंट दिया है वहां पर, ओके, नाउ यहां पर मेरकुरी को वहां पर कितना पॉइंट है भिन्नाष्टक वर्ग में? देखो 12 में टोटली, कक्षा नहीं, टोटली इफ यू सी देयर आर 5 पॉइंट्स। 5 है ना? 5 है ना पाइसेस में? 5। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मेरकुरी को कितना? 54 पॉइंट्स टोटल है ना? 54 डिवाइड बाय 12, मेरकुरी टोटल इन भिन्नाष्टक वर्ग, हाउ मच इट इज? मैक्सिमम 54। सो 54 डिवाइड बाय 12, तो अबव एवरेज है ना वो। तो मेरकुरी को अच्छा पॉइंट मिला है। मेरकुरी को सपोर्ट मिलता है किससे किससे? जुपिटर से, मार्स से, वीनस से, मेरकुरी से, मून से, ये सब प्लैनेट से मेरकुरी को सपोर्ट मिलेगा। क्यों? वहां पर मेरकुरी हैज गॉट अ बिंदु पॉइंट फ्रॉम these planets. Jupiter is ruling 9th and the 12th lord, no? Sitting in the 5th house. But how they are derived 54 points? सिंपल, मेरकुरी का कितना आता है? मेरकुरी 54 ना? We saw in the table initially, correct? So if you divide 54 by 12, on an average 4 point something will come, 4.5. Now Mercury has got 5 points. So point I'm making is, even if the Sarvashtak work is lower than 25 also, but if that planet has got more points in Vinashtak Varga, then that will also give you good benefit, good result. Okay, but other way around, if Sarvashtak Varga में अच्छा point है मगर विनाशक वर्ग में उसको खाली एक ही पॉइंट मिला, समझो कुछ फायदा नहीं है वहां पर, कुछ फायदा नहीं। समझ गया मैंने क्या बोला? अभी देखो सैजिटेरियस में, एक मिनट, सैजिटेरियस में जाओ, मेरकुरी का सैजिटेरियस में, मेरकुरी विनाशक वर्ग में ही सैजिटेरियस में जाओ, गया
नहीं नहीं 3 है, 3 है। उसको खाली सैजिटेरियस में उसको पॉइंट मिलता है, मार्स से मिलता है, मेरकुरी से मिलता है, मून से मिलता है, खाली 3 पॉइंट है। इट इज लेस देन एवरेज ऑफ 4.5। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नॉट क्लियर? क्लियर नो? ओके। किधर? मैं सैजिटेरियस का संबंध ही नहीं यहां पर ना, सैजिटेरियस का संबंध ही नहीं है यहां पर। मेरकुरी जहां से बैठा वहां से एस्पेक्ट हम लोग देख लिया। सैजिटेरियस मैंने ऐसे एग्जांपल दिया क्योंकि वहां पर टू अंडरस्टैंड कि मेरकुरी का जो बिना पॉइंट कम है वहां पर, उधर 28 पॉइंट्स है विच इज अबव एवरेज, बट मेरकुरी एज सच इज नॉट स्ट्रॉन्ग देयर। समझ गया? Got it? Clear? Now what you can do is you can yourself analyze. अभी वीनस भी देखता है उसको, 6th हाउस को देखता कि नहीं? वीनस का बिनाष्टक वर्ग में पॉइंट कितना है देखो, कौन सा कक्षा में है? उधर भी वो कक्षा दूसरा कक्षा में, सेकंड कक्षा में। वहां पर जुपिटर का वीनस का बिनाष्टक वर्ग में जाओ, सेकंड कक्षा में है। जुपिटर ने 1 पॉइंट दिया है उसको। मेरकुरी जैसा ही है मैडम, मेरकुरी हम लोग ने देखा ना बिनाष्टक वर्ग, मेरकुरी देखा ना। तो वीनस का देखो, अभी वीनस का बिनाष्टक वर्ग देखो, सेकंड कक्षा। सो गो एंड सी वीनस बिनाष्टक वर्ग। जुपिटर हैज गिवन 1 पॉइंट। No, Jupiter na, you have to see Venus. Venus is in Pisces. Venus is placed in Pisces. So you go to Binashtak work of Venus in Pisces. In which kaksha it is? Second. Whose kaksha belongs to second? Jupiter. Jupiter has given point or not? It has given 1 point. Correct? So Jupiter will support Venus. Correct? So in Venus ka aspect, Mercury ka aspect, both are beneficial for the 6th house. Clear or not? Okay? Clear? Now in this period, there is likelihood of him getting married also. शादी हुआ उसका? नहीं हुआ। अभी शादी होने का उसका अच्छा योग है 32 to 38. Why? Because the 7th lord being exalted in the kaksha of Jupiter, which has given point, and that girl, let us see, even sun is also aspecting that boy नहीं, this some ये जो अभी is a male, okay, is a male, this native is a male. Now sun is also aspecting, no, we'll go to the sun, then we will complete that analysis. sun का बिना शोकर पे जाओ, अभी sun का, क्योंकि sun भी देखता है ना 6th हाउस को। तो sun कौन से कक्षा में है? कौन से कक्षा में? 23.45, मून का कक्षा में, बराबर। मून ने भी दिया है उसको ना। तो अभी ये पीरियड में उसको घर लेने का भी मौका है, उसको घर लेने का भी मौका है, या गाड़ी जो भी है। 32 to 38 because moon is the lord of the 4th house. Clear or not? Sun is aspecting the Virgo. Virgo is the age band from 32 to 38. Correct? So Sun is lord of the 5th house. Sun is in the kaksha of Moon, which has given 1 point. So Moon is the lord of the 4th house. 4th house is property.
सो बिटवीन 4 and 12, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है ना मून, तो ये टाइम में उसको शिफ्टिंग सब होएगा, शिफ्टिंग, ही विल शिफ्ट द हाउस। अरे दशा में अभी मत जाओ, दशा में जाओ मत ना, मैं बिना दशा में इतना प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग ना, व्हाई यू गो टू दशा? दशा में विल गो, दशा में लेटर ऑन वी विल मैच द दशा एंड द नेटल चार्ट, दैट यू डोंट वरी। But without applying dasha, when you are able to get so many things, will not the person coming to you be surprised? He will come into, now sun is also aspecting, moon का कक्षा में है, तो इसको कोई लड़की, सन इज 5th हाउस का लॉर्ड है, ओके, कोई लड़की घर के आसपास से ही कोई लड़की उसको मिलेगा, प्यार चलेगा। देखो जॉब के थ्रू से, एक मिनट कंप्लीट, जॉब के थ्रू से 9th हाउस का लॉर्ड है, इज ट्रैवलिंग, नो इज कैबिन क्रू है ना, ओके, तो जॉब के थ्रू से ही कोई आया बोलता है, हाँ टूटा भी होगा वो, हाँ 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 हाँ, देखो क्या है वो मार्स है ना, वो मार्स जिसको पॉइंट नहीं मिला है एक्वेरियस में, वो वर्गो को एस्पेक्ट करता है, 8th एस्पेक्ट करता है, तो विल इट नॉट गिव फाइट? देगा ही ना। जो मार्स 5th हाउस को देखता भी है, 6th हाउस को देखता है, तो 5th हाउस जब भी देखेगा उसको अफेयर भी देगा। Affair is always not two way. It is one way also. You may be interested in somebody else. समझ गया कि नहीं? तो ये जो मार्स है 5th हाउस को भी देखता है, 6th हाउस को भी देखता है। 6th हाउस क्या है? झगड़ा। शादी तो होगा ये टाइम में, 32-38 में शादी तो होगा, देयर नो डाउट। अरे वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है ना भैया। अरे 6th हाउस एस्पेक्ट हो, 6th हाउस इफेक्ट हो रहा है क्योंकि 32-38 है, बट कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है? 7th हाउस का लॉर्ड है ना, एक्टिवेट हुआ है ना वीनस भी जुपिटर का, तो उसको कोई ना कोई उसको मिलेगा उसको। और कभी मिलेगा? अभी मिलेगा। वीनस अभी जस्ट स्पाइसेस में एंट्री मारा है। 30 दिन का अंतर मेरे को बोलो, अभी वीनस अब भी आया है। हाँ, फर्स्ट वीक को। अच्छा, ओ क्या सुसाइड किया? ओ रात को 1:30 बजे तक क्रिकेट खेल रहा था, फिर 15 मिनट के टेरेस पे गया, घर पे आया, सोया, 2 बजे 2 सोया रहेगा, सुबह से पूरा वो खराब होएगा, और मटन में आके 2:30 बजे मारा। मार्स का इम्पैक्ट रहेगा। जैसे पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल। मार्स का इम्पैक्ट रहेगा। मार्स एस्पेक्ट किया ना, मंगल 8वें स्थान का हम लोग देखते हैं ना, बाधक स्थान से वो उसको देखता है ना। बस ये जो 32-38 इज अ वेरी, बिकॉज ऑफ मार्स इट इज नॉट अ गुड ईयर, इट इज नॉट अ गुड ईयर। जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, ओके।